देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत्तहूर शत्रुल ईमान, मुस्लिम शरीफ। पाकी आधा ईमान है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रियासती वजीर टी हरीश राव नुमाइश सोसाइटी हैदराबाद के सदर मुंतखब। अलहदा रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर और इनके अरकान खानदान को ही फायदा, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी। रियासती हुकूमत शहरी तरक्कियात के लिए कोशा, रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी। अस्सी साल तारीख रखने वाली हैदराबाद नुमाइश सोसाइटी के नए सदर के तौर पर रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव का इंतखाब अमल में लाया गया। नुमाइश सोसाइटी अहदेदारों ने बताया कि नुमाइश सोसाइटी की दरख्वास्त पर वजीर मौसूफ ने अपनी रजामंदी का इजहार किया है। याद रहे कि साबिक रियासती वजीर टला राजेंद्र इससे कबल इस कमेटी के सदर थे। नुमाइश सोसाइटी अहदेदारों ने आज वजीर मौसूफ के मकान पर पहुंचकर इनसे इजहार तशक्कुर किया। मरकजी काबीना वजीर किशन रेड्डी ने आज आलेर में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा कि हजारों मुजाहिदीन तेलंगाना ने अपनी जानें कुर्बान की तो अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में आया। इसमें केसीआर या इनके अरकान खानदान का कोई रोल नहीं है। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद हुकूमत इन मुजाहिदीन व शहदाए तेलंगाना को तो भूल गई और चीफ मिनिस्टर केसीआर और इनके फर्जंद इख्तिदार का मजा लूट रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इस बात का जवाब तेलंगाना की आवाम मुनासिब वक्त पर जरूर देगी। सर सर ना फ्लैश सर सर once remarks by Sri Chintakini Mandi. इंडियन कांग्रेस అన్నా అంత ముందు పోతే విజువల్ మీద చాలా మాకు శ్రీకాంత్ నువ్వేనా నాకు కొద్దిగా కెమెరా బ్యాగ్ रियासती हुकूमत शहरी तरक्कियात के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स की फराहमी कर रही है। यही वजह है कि आज सभी बल्दियात में करोड़ों रुपयों के सरफे से तरक्कियाती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार सबिता इंदिरा रेड्डी रियासती वजीर बराए तालीमात ने आज हल्के असम्बली महेश्वरम के बड़ंगपेट मंडलिया में 370 करोड़ के तरक्कियाती कामों का संग बुनियाद रखने के दौरान किया।
इस मौके पर सदनशीन बल्दिया बड़ंगपेट स्वप्ना वेंकटेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। పార్యాద నరసింహారెడ్డి గారితో పాటు గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా డిప్యూటీ మేయర్ గారు ఇబ్రాహిం శేఖర్ గారితో పాటు గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. వారితో పాటు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న దీపికా శేఖర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా స్వప్న వెంకటరెడ్డి గారితో పాటు రామరెడ్డి, మిగతా సోదరులందరూ కూడా చాలామంది సోదరులు ఉన్నారు. కృష్ణ కార్పొరేటర్ గారు, ఏనుగు రామరెడ్డి గారు, మిగతా అల్మాస్ కూడా సంబంధించిన కార్పొరేటర్స్, గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరికీ కూడా వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. దాదాపు ఈరోజు 3,72,00,000లకు సంబంధించిన వర్కులు ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. ప్రధానంగా చాలా రోజుల నుండి ఈ ప్రాంత వాసులు కోరుకుంటున్న ఐమాత టెంపుల్ సంబంధించిన రోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ₹1,00,00,000 సంబంధించిన వర్క్ దాన్ని పెట్టడం జరిగింది. ఈరోజు ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం. తొందరలో దాన్ని కూడా గ్రౌండ్ చేసి తొందరలో పూర్తి చేసి వీళ్ళకి అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని కూడా మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్న కాలనీ వాసులందరూ కూడా మనవి చేసుకుంటా ఉన్నాను. దీంతోపాటు ఈ మధ్యన మనము రాజు గురకల్ప నుండి గుర్రంగూడ పోయే రోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం ₹1,80,00,000తోని. దాన్ని కూడా తొందరలో ఈ వర్షం కొంచెం రాకుండా ఉండేటట్టు చూసి మొదలు పెట్టమని చెప్తున్నాం. దాన్ని కూడా తొందర పూర్తి చేసుకొని అందించడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మనకు అయ్యంగారి బేకరీ నుండి అల్మాస్ కూడా అంటే బడంపేట కమాన్ వరకు చాలా పెద్ద రోడ్డు, చాలా ట్రాఫిక్ కూడా ఉంటుంది. సో ఉన్న రోడ్ని వైడనింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే దాంట్లో భాగంగా దాన్ని కూడా ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. ₹2,00,00,000 అది ఫౌండేషన్ వేసుకున్నాం. దాన్ని కూడా తొందరలో మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు అందరం కలిసి అధికారులు సమన్వయంతో అయితేనే ఈ పని చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే పోల్ షిఫ్టింగ్ ఉంటుంది, వైడనింగ్ చేస్తున్నప్పుడు స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళతో సపోర్ట్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా గౌరవ కార్పొరేటర్స్ అందరూ దయచేసి వెనుకుండి వీలైనంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు చేయమని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేదవాళ్ళకి వైద్యాన్ని అందించాలి, పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళకి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారనే దాంట్లో భాగంగా ఈ మధ్య కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్, గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్ అనే కాకుండా అలాంటి టైప్లో పెద్ద హాస్పిటల్స్ కట్టాలనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంలో భాగంగా మనందరికీ తెలుసు, మన గడ్డేనరం ఎల్బీ నగర్లో ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రావడం జరుగుతుంది. शादनगर पुलिस की जानिब से आज शादनगर में 2000 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल एक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली की क़यादत सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रखू ने की। इस रैली के जरिए आवाम में रोड सेफ्टी के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी की गई और इस रैली के जरिए तेलंगाना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शादनगर पुलिस का नाम भी दर्ज किया गया। इस रैली को एसीपी शादनगर कुशोलकर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक एसीपी शमशाबाद विश्व प्रसाद, सदनशीन बल्दिया शादनगर नरेंद्र, कमिश्नर बल्दिया लावनिया के अलावा मज़ाहिया अदाकार बेकरी सत्यो दीगर मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। ప్రమాణం చేయుచున్నాను కొట్టేస్తారండి, ఇంక తప్పితే కుదరదు. భారత్ మాతా కి, భారత్ మాతా కి, భారత్ మాతా కి. ప్లీజ్, థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. ప్రశంసలు ఎప్పుడు దొరుకుతాయి. రఘు సార్ అంటేనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పేరుంది. ఆయన సొసైటీకి ఏమైనా చేయడానికి ఆయన మర్చిపోతాడు, ఆయన ఫ్యామిలీని మర్చిపోతారు అనే పేరుంది. ఎందుకంటే పని అంటే ఆయనకి ఇష్టం. పని ఆయన శ్వాసిస్తాడు, పనినే ఆయన శ్వాసిస్తారు. పని లేకపోతే ఆయన తట్టుకోలేరు, ఆయన ఊపిరే. सदनशीन बल्दिया अब्दुल्ला सादी ने आज सहाफियों को बताया कि हुकूमत की जानिब से फैसला आया तो है कि उस्मान नगर के मकानात मुनहदिम किए जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 500 ता 600 मकानात हैं और ये बस्ती 25 ता 40 साल पुरानी बस्तियां हैं। उन्होंने कहा कि बस्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करेंगे और अदालत के इस हुक्म को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने इलाके की आवाम से इत्मीनान रखने की अपील की। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। बरकातु। मैं म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जो उस्मान नगर के इशू को लेकर जो अफवाहें आ रही हैं और जो कोर्ट का ऑर्डर भी आया है और जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, वो जो घर तोड़ने का जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, वो जो
जो कोर्ट को रुजू होकर जो मछुआरे जो वेंकटापुर के जो गए हैं जाकर ये कोर्ट का ऑर्डर लेके आए कि यहाँ के घरों को डिमोलिश किया जाए, क्योंकि ये घर कैसा डिमोलिश कर सकते हैं आप बोलिए। कोर्ट के फैसले को हम कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन कोर्ट का फ़ैसला गलत है, क्योंकि वो 20-25 साल पुरानी बस्तियां हैं, वहाँ पर आप जाके 4 हफ्ते के अंदर वहाँ घर तोड़ देंगे बोल तो ये नहीं होने वाली बात है। ये कोर्ट को ये चाहिए था कि आप हुकूमत को ये ऑर्डर देना था कि आप कुछ एक ऑल्टरनेट रास्ता निकाल के एक पैसे सेंक्शन करके एक 15 करोड़ या 20 करोड़ खर्चा वो सेंक्शन करके वहाँ से एक आउटलेट निकाले पानी का। आप वो नहीं करके आप वहाँ के घरों को तोड़ेंगे बोल तो वहाँ पर तकरीबन 500 से 600 घर है, वो जो 20-25 साल पुराने भर गए, जो पुराने लोगों की गलतियों से आज वो घरा बन गए। लेकिन घरा बनने के बाद आप फिर तोड़ेंगे बोल तो वो लोग जाएंगे कहाँ? वो गरीब लोग हैं, पहले 2 साल से वो परेशान है, सैलाब आया, पानी आ गया, फिर कोरोना से परेशान थे, फिर रोज़गार नहीं उनके पास, वो डेली जाकर कमाने वाले लोग हैं, वो लोग गए तो उनका घर चलता। अब उन लोगों के घरों को तोड़ेंगे तो कैसा होगा बोलिए आप। हम नक़वी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर इंशाअल्लाह हम जिला उस्मान नगर के लोगों के साथ हैं, हम घर वो टूटने नहीं देंगे। ये दरअसल ये उस्मान नगर के लोगों के लिए, इस उस्मान नगर के वहाँ से एक साजिश है। हम सख्त इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ये चीज़ को हम लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, इंशाअल्लाह ये ऑर्डर को भी रखेंगे और जीत हमारी होगी इंशाअल्लाह। अरे कौन सी आप इंसाफ़ी कर रहे हैं लोगों के साथ बताइए। गरीब लोग जो दर के ठोकरे खा रहे हैं, उनके लिए घर रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, 2 रोज़ की रोटी नहीं है, उनके घर तोड़ दे रहे हैं, तो ये कौन सी बात है। आप ये चीज़ को सोचिए। हम इंशाअल्लाह ये चीज़ कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन स्टे ऑर्डर लाएंगे। रहा मसला तोड़ने का जब देख लेंगे, पहले जैसे भी हमारे आंख पे से जाना, उसके बाद देखेंगे क्या होता इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब हैदराबाद में सियासी रैलियों में शिरकत पर भी हमले किए जा रहे हैं और पुरअमन हैदराबाद को सियासी रस्साकशी में हमले की रिवायत कायम की जा रही हैं। जी हाँ नाजरीन, हाल ही में महेश्वरम में कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम में शिरकत के लिए गए मुदस्सिर और समी नामी नौजवानों पर टीआरएस कायदीन वसीम और दीगर ने हमला करते हुए जख्मी किया। ये वाकया बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में जोहरा नगर में पेश आया। नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, मैं बंजारा हिल्स में रहता हूँ, रोड नंबर 10। वहाँ बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में रहता हूँ मैं। तो मैं वहाँ से जा रहा था तो तेलंगाना के लोग आए हुए थे, वहाँ तेलंगाना के लोग रुके थे, तो मैं वहाँ से जा रहा था तो मेरे को बोले ना कहीं को तू कांग्रेस में, तेलंगाना टीआरएस पार्टी के एमएलए के लोग आए, एमएलए दानम नागेंद्र के नीचे हाथ के नीचे के लोग आए लोग। तो उसका नाम है डाकू वसीम, एक है नसीर है और एक शफ़ी है, समीर है, शारदा अजहर और क्या मस्सान है और इतने जने नसीर है, इतने जने हैं। वहाँ से जा रहा था, मेरे को बोले इंस्टा परसों रैली थी ना, कांग्रेस की रैली थी, तो मैं उसमें से फ़ोटोज़ डाला भाई के साथ के, हमारे बाबा भाई के साथ के फ़ोटोज़ डाला। तो बोलना क्या बोले कहीं तो डाल रहा, तो ये फ़ोटोज़ हमारे सामने ऐसा कर रहा क्या, वैसा कर रहा क्या बोल के गलेटा डाल के पूरा सिर में से खून मार दिए। वहाँ पे चाकू निकाल रहे मारने, कैसा करता तो पार्टी में काम ये वो बोल के मार रहे। हमेशा हर टाइम हमेशा ऐसी करते हैं टीआरएस। जी हाँ नहीं रहना तो ये पार्टी में कहीं को कर रहा है, पार्टी में करना ही नहीं तो काम, ये पार्टी में कांग्रेस में। ये पहली बार लड़े, पहले भी नहीं, इससे पहले भी करे लोग, इससे पहले 2-3 बार करे लोग। किसको मारे लोग? आपको मारे? मेरे को मारे, समी भाई को मारे और फैयाज भाई बोल के, उनको हमला 3 जने थे, हम दोनों थे। मेरे को गनेटा डाले, चाकू निकाल के मारे, गाड़ी में से चाकू निकाल के मारने आ रहे थे। गनेटा कंप्लेंट करे बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 नंबर पीएस में। नूरी नगर बी ब्लॉक में एक मासूम लड़की टाटा एसी ऑटो ट्राली के नीचे आकर हलाक हो गई। 2.5 साल की बच्ची एक मुकामी मजदूर की है। लड़की के वालिद शेख शौकत ने कहा कि ऑटो ड्राइवर ने पुरानी मखासिमत की बिना पर जानबूझकर इनकी लड़की को कत्ल किया है। इस खुसूस में चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। लड़की के वालिद और लवाहिकीन का कहना है कि दरख्वास्त के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम अनीसा है, हम नूरी नगर बी ब्लॉक में रहते हैं। हम लोग यहाँ सामने
टाटा एसी से बच्ची को मार दिए ऐसा घर के सामने वाले पड़ोसी को। कितने बजे अम्मा ये 4 बजे के करीब हुआ है। कौन सी गाड़ी चलाई? टाटा एसी। उम्र कितनी है बच्ची की? 2.5 साल है सर। छोटी बच्ची है मेरी। मेरी बच्ची इतनी छोटी है सर, मैं क्या बोल के बयान दिया तुम लोगों को। तो मैं क्या गलती है अल्लाह हमारी, इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो गया। शरबत पीना मेरी बच्ची के लिए गुनाह हो गया अल्लाह। शरबत पीना मेरी बच्ची को वो हो गया अल्लाह। बच्ची 2 मिनट के लिए वहाँ पे शरबत पीने के लिए वहाँ नीचे उतरे थे अनु। मैं यहाँ ठहर के देख रही हूँ थी, खाली जस्ट 1-2 मिनट में दूध का चूल्हा बंद करके आया था कि ये सब हो गया सर। ये कौन सी एरिया में हुआ अम्मा? ये नूरी नगर पी ब्लॉक है। ये कैसा हुआ, क्या हुआ? ये बच्चे खेल रहे थे, शरबत भी नहीं जरा नीचे उतरे, वो गाड़ी वाले नहीं देखे जैसा गाड़ी पर चढ़ा दिए थे वो बच्चे के ऊपर। कौन सी गाड़ी वाले? ये टाटा एसी वाले, घर के सामने के पड़ोसी। घर के सामने के पड़ोसी थे ना। इससे पहले कुछ आपका झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ क्या? हाँ आपके हुआ ननद था। बोला था झगड़ा हुआ। जी हाँ, इससे पहले हुए थे झगड़े वगैरह। तो आप कंप्लेंट करें? जी अब क्या है समझ आ गया। क्या बोले पुलिस वाले? लिख लिए मैं अनकॉन्शियस है उसमें खेलो। मैं कुछ भी लिखे जैसी नहीं थी सर, मैं मेरी बच्ची के उसमें मैं थी, मैं क्या लिखा है क्या करे मैं कुछ भी नहीं देख सकी। मैं नहीं घर के बाजुक रहते, हाँ कुछ भी एक लड़ाई होंगी भाई, क्या बच्ची की जान ले लेते? हाँ नीचे बच्ची को देखना नहीं मालूम, तुम टायर पीछे सामने चला रहे पीछे चला रहे, क्या नहीं मालूम है तुम्हारे को? हाँ ऐसे करते, तुम्हारी औलाद रहते ऐसे कर लेते। हाँ घर के बाजू का मेन रोड नहीं है, ये गली है, गली में देखना तुम्हारा काम है नहीं है। हाँ लड़ाई होंगी, लड़ाई से लड़े बात करो, बड़ों से बात करो, बच्चों से क्या दुश्मनी है? बच्ची को ला के देते। हाँ और बच्ची सारी देर को बेहोश हो जा रही है, अगर वो बच्ची को कुछ भी हो गया तो उसके 2 बच्चों को कौन फिर जिम्मेदार? फिर रहते हैं जिम्मेदार। जो भी है अच्छा करना, वो खत्म, इंसाफ मिलना हो बच्ची को। दिखे तो अब भी चीज को खत्म करना, सब इसको कमी नहीं को। हमें 4 गुट्टा पुलिस वाले जो भी है उन्हें देखना, जल्द से जल्द कार्रवाई करना। अगर नहीं गुट्टा पुलिस वाले जो भी है उन्हें देखना, अच्छा देखना, इंसाफ जो है देख करना उन्हें। छोटी मासूम है बच्ची हो, सुने बड़े आदमी नहीं होती, उन्हें क्या भी नहीं होती, दुश्मनी करने के वास्ते छोटी बच्ची से क्या दुश्मनी है? हाँ छोटी बच्ची से दुश्मनी क्या है? मेरा नाम शेख शौकत है, मैं नूरी नगर बी ब्लॉक आयशा मस्जिद के सामने रहता हूँ। मैं मेरा ज़रिया है हमाली है मेरा ज़रिया, और मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से मेरी ये जो छोटी बच्ची का इंतकाल हुआ है, ये टाटा एसी गाड़ी वाला मेरे घर के सामने बच्ची के ऊपर चढ़ी हुई है गाड़ी, सामने का टायर और पीछे का टायर चढ़ा दिया, और उसका जो पड़ोसी का है दुश्मनागी है या क्या है नहीं मालूम, मेरी बच्ची का इंतकाल हुआ। मेरे बच्चे का इंसाफ होना है मेरे। क्या टाइम पे हुआ? ये 3 और 4 बजे के बीच के टाइम में हुआ है। तो आप कंप्लेंट दी है? जी मैं कंप्लेंट दिया चंद्रनगुट्टे पीएस में। क्या बोले चंद्रनगुट्टे पीएस में? तो अब ये फिलौखत मेरे घर के लोग गए वहाँ पे, मैं तो नहीं गया अभी। तो आप लोगों को फोन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया, खाली एक रेस्पॉन्सिबल आया, खाली जो क्या है आधार कार्ड दियो बोल के, बच्ची का आधार कार्ड दियो बोल के, वो भी मेरे छोटे भाई को बोले। जी आप क्या चाह रहे हैं आप? जी मेरे को मेरी बच्ची का इंसाफ होना है। ये आधे सवाल जब कहाँ थे आप? मैं आधा सौ पे इधर था, काम पे था मैं। आपको कब मालूम? जी कब मालूम आपको? मेरे को फ़ोन पे मालूम हुआ। बच्ची की स्पॉट पे इंतकाल होगा? हाँ स्पॉट पे इंतकाल होगा। क्या उम्र रहती बच्ची की? बच्ची की 2.5 से 3 साल के बीच में रहती बच्ची, 2.5 साल। ये होना बोल के करे बोल रहे का मतलब है आपका? जी हाँ साहब, वो तो है ना साहब, खाली अब गाड़ी जो मिरर रहते साइड में, अब गाड़ी पीछे आए सो टाइम पे कम से कम ड्राइवर देख लेता, वो तो नहीं देखा ना साहब ने। इससे पहले भी हुआ क्या कुछ भी? इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ साहब। ये तकरीबन गाड़ियाँ आते तकरीबन जाते साहब, कम से कम बच्ची को तो देखना है। आपके भाई बोल रहे इससे पहले झगड़ा हुआ ना आपका? जी झगड़ा हुआ। आपके भाई बोल रहे जी हमेशा क्या है, कभी कोई से बातों पे झगड़े निकालते रहते, दूसरों के बारे में अपने बीच में लड़ाइयाँ लगाते बीच में। ये कौन करते थे पूरा? ये हमारे जो घर के सामने के पड़ोसी।
तो ये आपके घर के बाहर यहाँ पर ही छुआ है? हाँ ये जी मेरे घर के सामने हो, मेरे घर के सामने वाले है ये। कौन सी गाड़ी से वो? टाटा एसी से। ये सामने छुआ आपके? जी मेरे सामने छुआ और चंद्रन गुटे पीएस में है टाटा एसी। नहीं साहब यहाँ गाड़ी तो पलटती नहीं ना यहाँ पर। नहीं साहब पीछे रिवर्स से ले लेके आ गाड़ी उन्हें। बच्ची खेल रही थी रिवर्स अच्छी खेल रही थी। राजेंद्र नगर के इलाके सुलेमान नगर में यूवर्स ट्रस्ट की जानिब से माह मुहर्रम के पेश नज़र मासूम बच्चों में मेवाजात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुनाकिदा एक तकरीब में सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कंकैया ने शिरकत फरमाते हुए मेवा तकसीम किए। सदरनशीन ट्रस्ट कौसर बेगम और नायब सदरनशीन ट्रस्ट मोहम्मद मोहसिन के अलावा दीगर ने शिरकत की। घर आ गई पूरा फ्रेम में कवर कर रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी आओ। हाँ ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का काम। अरे 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 जाके वहीं ठहर रहे भाई से जाओ। मोहसिन भाई तुम दियो। चलो शफी भाई फिरोज इधर आ जा। 11 जुलाई को फिल्मी अदाकारा पायल राजपूत ने पेद्दापल्ली जिला मुस्तखर पर एक शॉपिंग मॉल वेंकटेश्वरा शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया था। उस वक्त उन्होंने मास्क लगाए बगैर इस प्रोग्राम में शिरकत की थी, जिसका नोट लेते हुए एक सियासी जहदकार ने पेद्दापल्ली कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए अदाकारा की जानिब से कोरोना जवाबित को नजरअंदाज करने पर मुकदमा दर्ज करने की अपील की थी, जिस पर अदालत ने अदाकारा और शॉपिंग मॉल मालिक पर मुकदमा दर्ज करने की मुकामी पुलिस को हिदायत दी है। మేడం మేడం ఒకసారి చూడండి మేడం మేడం ఒకసారి ఆగండి ఆగండి మేడం మేడం పట్టుకోండి పట్టుకోండి नाज़रीन आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोड असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोड एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155455 और गर्मा गर्म ताज़े दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर
देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.